Hello everyone, our next topic is inverted page table, and in this scheme, after paging and demand paging and multi-level paging, in this scheme we are trying to solve the problem or trying to overcome the problem of page table with the page table storage. So what we were doing in multi-level paging or in paging, we will be having a page table of each process where the entry of each page of that process will be stored, right? So as the number of processes increases, number of page table also increases, which will be stored in the main memory only, and that page table of each process which is executing now will be stored in the physical memory only. And because of that problem, because the page table size is increasing tremendously, so we go for multi-level paging so that we can search the actual frame stored in the physical memory for that virtual page easily. The page table is sorted by virtual address, and the operating system is able to calculate where in the table the associated physical address entry is and to use that value directly. So one of the drawback of this method is that each page table may consist of millions of entries, and these tables may consume large amount of physical memory, which is required just to keep track of how the other physical memory is being used. So to solve this problem, we are using inverted page table. So an inverted page table, this is inverted page table. Here we are having a entry of each frame, real frame of the physical memory, right? Physical memory को हम कैसे डिवाइड करते हैं? फ्रेम में डिवाइड करते हैं, and the size of frame will be equal to the size of page. ठीक? तो rather than having a page table of each process in the memory, can't we have a single page table which will be representing the information about the real frame of physical memory, जिसमें ये information रहे कि उस समय फिजिकल मेमोरी के एक फ्रेम में कौन सा पेज, कौन से प्रोसेस का कौन सा पेज स्टोर है, राइट? सो वी विल बी मेंटेनिंग अ सिंगल पेज टेबल. The number of entries in this inverted page table will be equal to the number of frames in the physical memory. अब हम वर्चुअल मेमोरी के हिसाब से अपना पेज टेबल नहीं बना रहे हैं, अब हम फिजिकल मेमोरी के हिसाब से अपना पेज टेबल बना रहे हैं. और अब हमारी नंबर ऑफ एंट्रीज किस पे डिपेंड करेगी? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फ्रेम्स इन द फिजिकल मेमोरी. How many number of frames you have divided your physical memory, that will be equal to the number of entries in the inverted page table. So this one is inverted page table. What we are storing in the inverted page table? The process ID and the page number. किस प्रोसेस का कौन सा पेज नंबर स्टोर है एक फर्स्ट फ्रेम में और सारे फ्रेम में, वी आर स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन. सो अगर एंट्रीज हमने तो फर्स्ट जो फ्रेम है उसकी एंट्री फर्स्ट होगी, सेकंड फ्रेम की एंट्री सेकंड एंट्री होगी, थर्ड फ्रेम की एंट्री थर्ड होगी. तो ऐसे ही जितने फ्रेम्स होंगे उन सब की एंट्रीज हम इन्वर्टेड पेज टेबल में रखेंगे, और एवरी एंट्री कंटेन्स टू इंफॉर्मेशन, दैट इज प्रोसेस आईडी एंड पेज नंबर. ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस को आपने पेज में डिवाइड किया है. अ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू पेजेस. तो एक प्रोसेस के मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, तो उस प्रोसेस का जो आईडी है और कौन सा पेज is stored in which frame, because in demand paging, as you know, we are bringing only few pages. तो at a time उस प्रोसेस का कौन सा पेज किस फ्रेम में है, ये हम इंफॉर्मेशन जब भी वो लोड होता है तो ये इंफॉर्मेशन हम इन्वर्टेड पेज टेबल में स्टोर कर लेते हैं, राइट? each entry consists of the virtual address of the page stored in the real memory location with information about the process that owns that page. So thus only one page table is in the system, and it has only one entry for each page or each frame of physical memory. Got it? So when the CPU generates the logical address,
now this is not, that logical address will not be divided only the page number and offset, because अब एक पेज टेबल है तो we use several different address identifier एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर, और क्योंकि हमको लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है, सो दैट एड्रेस आइडेंटिफायर इज द प्रोसेस आईडी. ठीक है, जब भी सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो पेज नंबर के साथ में प्रोसेस आईडी भी इंक्लूड होगा, एंड इंक्लूडिंग दैट प्रोसेस आईडी एंड पेज नंबर, दिस टू इंफॉर्मेशन विल बी मैच्ड, will be searched through the inverted page table for a match. It will, जो अपना प्रोसेस आईडी है, पेज नंबर है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन को हम, क्योंकि हम यही दो इन्फॉर्मेशन इन्वर्टेड पेज टेबल में रखे हैं, तो ये इन दोनों को मैच करते जाएगा. लाइक कैसा स्टोर रहेगा, प्रोसेस P1 का P0 पेज, लेट टेक इट कैपिटल P, प्रोसेस को हम कैपिटल P ले लेते हैं, ये स्मॉल p. प्रोसेस P1 का P0 पेज यहाँ पर है, देन फर्स्ट वाले फ्रेम में. देन प्रोसेस P2 का P1 पेज यहाँ पर है, एंड प्रोसेस P1 का अगेन P1 पेज यहाँ पर है. लाइक दिस वी आर स्टोरिंग आवर इन्वर्टेड पेज टेबल. सो दीज टू इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड एंड इट विल सर्च्ड थ्रू द इन्वर्टेड पेज टेबल फॉर अ मैच. इफ द मैच विल फाउंड कि हाँ ये प्रोसेस आईडी और ये पेज नंबर अगर मैच फाउंड हो जाता है, और जिस एक एक करके ये इस तरीके से मैच करता जाएगा, जहाँ पर मैच फाउंड होगा, बिकॉज दिस सीक्वेंस जो इंडेक्स है वो कैसा है, जिस जैसा इंडेक्स हमारे फिजिकल रियल फ्रेम्स का है, तो जहाँ पर मैच फाउंड होगा तो वो इंडेक्स जो आई इंडेक्स है कि कहाँ तक हम आए, दैट विल बिकम द फ्रेम बेस एड्रेस. ठीक है, ये ऑफसेट कितना हुआ, एंड दैट ऑफसेट विल बी टेकन इट एज अ फ्रेम बेस एड्रेस कि कौन से फ्रेम में है, एंड देन द ऑफसेट विल बी द सेम फॉर विद इन दैट पेज. what information or what instruction you want to execute will be same from the logical address to the physical address, and here we are getting the actual frame base address, real frame base address. So it will convert it from the logical address to the physical address, and then we can access the physical memory. तो इस स्कीम में आप ये तो देख पा रहे होगे कि एक ही पेज टेबल रखना पड़ रहा है, बहुत सारे पेज टेबल नहीं रखना पड़ रहा है, बहुत सारे प्रोसेसेस, जितने प्रोसेसेस होंगे तो हर एक प्रोसेस का पेज टेबल नहीं रखना पड़ेगा. तो ऑल्दो दिस स्कीम डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड टू स्टोर ईच पेज टेबल, बट have you seen it increases the amount of time needed to search the table when a page reference occur. कोई एक पेज सर्च करने के लिए हमको ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा एवरी टाइम, एंड जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे हर बार वहाँ से स्टार्ट करना होगा. मे बी द लास्ट एंट्री विल मैच फॉर सम प्रोसेस. सो इन दिस वे दिस searching time is increasing in this inverted page table, although we have decreased the amount of memory stored for inverted page table. तो स्पेस तो हमने कम कर लिया, बट टाइम हम कम नहीं कर पाए इन दिस इन्वर्टेड पेज टेबल. सो दिस सर्चिंग, जो सर्च करने में लुकअप हम लोग जो कर रहे हैं वो वर्चुअल एड्रेस के हिसाब से कर रहे हैं, है ना. तो पूरा द होल टेबल माइट नीड टू बी सर्च फॉर अ मैच, तो दिस सर्च वुड टेक फार टू लॉन्ग, एंड टू एलिविएट दिस प्रॉब्लम वी यूज द सर्चिंग प्रॉब्लम, और टाइम को कम करने के लिए हैश टेबल यूज होता है. ठीक है, बट दिस इज आउट ऑफ our syllabus, so I am not discussing the hash table here. If someone wants it, can go and learn it from the Galvin book. Let's take an example कि अब पेज टेबल का साइज क्या होगा. So let's take an example. Logical address is of 32 bits, physical address 24 bits, page size 4 KB, page entry size 4 byte is given. These are the information that are given. So we have to calculate the size of page table or inverted page table. Inverted page table. That we have to calculate. अब हमको फिजिकल एड्रेस से काम है, अब लॉजिकल एड्रेस से काम नहीं है. तो फिजिकल एड्रेस कितने बिट का है, 24 बिट्स का है. सबसे पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स है फिजिकल मेमोरी में. सो लेट्स कैलकुलेट इट. द नंबर ऑफ फ्रेम्स इन द
नंबर ऑफ फ्रेम्स इन द फिजिकल मेमोरी। तो नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम फॉर्मूला, साइज ऑफ मेमोरी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स multiplied by size of each location. Size of each location, ठीक है। तो साइज ऑफ मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी क्या है? 2 to the power 24 बाइट्स, ये हमारी साइज ऑफ मेमोरी है। नंबर हमको निकालना है, नंबर ऑफ फ्रेम, एंड साइज ऑफ ईच लोकेशन इज गिवन एज पेज साइज, दैट इज 4 KB, क्योंकि जितना पेज साइज रहता है उतना ही फ्रेम साइज रहता है, तो एक एक फ्रेम का साइज दिया हुआ है। साइज ऑफ ईच लोकेशन, तो नंबर ऑफ फ्रेम हम निकालते हैं तो क्या आएगा? 2 to the power 24 डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा? 12 बाइट। इसको अगर 2 to the power में लिखेंगे तो क्या आएगा? बाइट बाइट कैंसिल, 2 to the power 12। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने आ गए हमारे? 2 to the power 12 फ्रेम्स। और जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स उतनी नंबर ऑफ एंट्रीज इन द पेज टेबल, इन्वर्टेड पेज टेबल। तो हमारे पास एंट्रीज आ गई हैं और एक एक एंट्री का साइज हमको गिवन है। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द साइज ऑफ इन्वर्टेड पेज टेबल। कैसे निकालेंगे? साइज ऑफ इन्वर्टेड पेज टेबल, नंबर ऑफ फ्रेम्स मल्टीप्लाइड बाई पेज टेबल एंट्री साइज, दोनों गिवन है और एक हमने कैलकुलेट किया है। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे निकले 2 to the power 12 मल्टीप्लाइड बाय पेज टेबल एंट्री साइज क्या दिया हुआ है? 4 बाइट। तो क्या हो जाएगा? 4 4 16 KB। सो 16 KB इज द साइज ऑफ इन्वर्टेड पेज टेबल, है ना। और अगर यही साइज़ आप सोच के देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को आप देखिए कितने पेज टेबल का साइज़ क्या होगा। अगर हम लॉजिकल एड्रेस को का इंफॉर्मेशन पेज टेबल में रखें, हर एक प्रोसेस का रखें, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम पेज टेबल साइज? तो इससे ज़्यादा ही आएगा। सो नाउ वी कैन स्टोर दिस पेज इन ऑलमोस्ट 4 फ्रेम्स, ठीक है। 4 फ्रेम में हम लोग, और सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, सारे जितने रियल फ्रेम्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। सो इन दिस वे इन्वर्टेड पेज टेबल actually decreases the amount of memory needed to store each page table, but it increases the amount of time needed to search the table when a page reference occurs. Okay, thank you so much.